Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about reading section. Yes, we have successfully completed the revision series for our literature section. We have successfully covered questions related to William Shakespeare. We have successfully covered content related to 19th and 20th century British and American literature. And also, we have successfully discussed one or two major writers from modern writings in English, R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, Ruskin Bond. They have successfully been discussed. But what is left now? We have good 7 days to our own self that we'll be dedicating to revision. We have discussed last 10 days strategy for this exam, and this video is exclusively dedicated to reading section. Reading section, in my own understanding of it, is one of the most easiest section of the paper. It demands clarity, correctness, and control over your language. The triple C's of reading section. I repeat, clarity, correctness, and control over your language. Reading section and writing section, they are exclusively added to your syllabus to check your knowledge of language. Literature is another section. But if you look at the complete structure of the syllabi, you will get to know the reading section and the writing section and grammar section, they are very number friendly. When I say this number friendly, marks friendly. When I say this thing, I mean it. Because if you have consistently been practicing for reading comprehension, if you have consistently been practicing the writing section and the grammar section, there are least chances of you getting wrong. But literature section, it is always unexpected, because from the flux of the thoughts, from so many thoughts, you have to gather and arrange few thoughts. Letter writing, from writing section, is all about format. You just have to change the content and format will remain same. Same with the reading comprehension. The passage is in front of you, the answer is in front of you. So here are my most awaited tips for reading comprehension and for Prezi writing. For reading comprehension, first of all, आपको 3 to 4 रीडिंग पैसेजेस मिल सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में. अब यहाँ पर सारा का सारा गेम होगा टाइम मैनेजमेंट का. टाइम मैनेजमेंट पर आने से पहले आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. एज पेपर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, don't start shuffling the pages. That will give you unnecessary anxiety, because अगर एक झलक आपकी लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन पर रुक जाती है, सारा माइंड का इम्बैलेंस वही हो जाएगा. तो इट इज entirely suggested that you people should start from reading section. स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए. अब रीडिंग सेक्शन को डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज इफ यू रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन, you will get an idea as to what you have to look for in the passage. You will get the idea of the keywords. With keywords I mean passage is all about what. ये keywords में ही आपको मिल जाएगा. ऑल राइट, तो पहले क्वेश्चंस को रीड करना, उसके बाद पैसेज को एक क्विक रीडिंग देना. अब यहाँ पर 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आंसर में जो जितने मार्क्स का आपका आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ड लिमिट को कन्वर्ट करना. यहाँ पर अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना. 6-7 लाइन से ज़्यादा आंसर मत देना, बिकॉज दैट विल बी ओवर अटेम्प्ट. तो ओवर एग्जेजरेशन आपको नहीं करना है. और सेकेंड थिंग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, अपनी इंटरप्रिटेशन मत लगाना. ओवर इंटरप्रिटेशन मत करना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते वक्त. और आज तक अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, वैसे तो अपने डियर स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट. इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना. डिवोट 2 to 3 hours ऑफ अ डे टू
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन। वहां पर रिवीजन काम नहीं आएगी, प्रैक्टिस काम आएगी। मैंने क्या कहा, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में प्रैक्टिस काम आएगी, रिवीजन काम नहीं आएगी। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर इट। अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। अगेन फर्स्ट डे से कह रही हूँ, टेबल चेयर पर बैठ के करना। अपनी एग्जाम टाइमर को सामने रख करके अटेम्प्ट करना अपना रीडिंग सेक्शन। तो क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं, पैसेज बाद में पढ़ना है। टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ओवर इमोशन, एग्जाम्पल, ओवर इंटरप्रिटेशन आपने नहीं करनी है। अब प्रेसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ आवर राइटिंग सेक्शन। अब प्रेसी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बैफल करती है, बट बैफल होने की जरूरत नहीं है। 2-3 थिंग्स के अलावा प्रेसी में कुछ नहीं है। वंस यू अटेम्प्ट अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द पैसेज। 1 बाय 1 आप पैसेज को रीड करते जाइए, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स समझने हैं। क्या समझ आ रहा है? पॉल्यूशन पर पैराग्राफ है, लिटरेचर के किसी सेक्शन पर पैराग्राफ है, नैरेटिव लग रहा है कोई। तो जब आप कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, रेपिटेशन ऑफ वन वर्ड, हेयर आई मीन कीवर्ड्स, तो वो वर्ड आपका टाइटल में जरूर अपीयर करना चाहिए। प्रेसी में अगेन टाइटल बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ की लेंथ है उससे 1/3 लेंथ में प्रेस करना है पैराग्राफ को। थर्ड पर्सन नैरेटिव आपको फॉलो करना है। अपने एग्जाम्पल और ओपिनियन यहाँ पर ऐड नहीं करना है। लैंग्वेज आपकी क्लियर कट लॉजिकल होनी चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। कोर आर्ग्यूमेंट पर अड़े रहना है। पूरा पैसेज रीड कीजिए, कोर आर्ग्यूमेंट कीवर्ड से समझ आ जाएगी, रेपिटेशन ऑफ वर्ड से समझ आ जाएगी कि पैसेज किस बारे में है। अपनी ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट्स को ऐड किए बिना जब प्रेसी का पैसेज रीड करो तो अंडरलाइन करते चलना कि ये लाइंस हमें ऐड करनी है। थर्ड पर्सन नैरेटिव, आई का यूज मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि एकेडमिकल प्रोफेशनल टोन में आप क्लियर लॉजिकल फ्लो के साथ प्रेसी लिखे। सो दीज आर माय टिप्स फॉर रीडिंग सेक्शन। मेक श्योर टू कीप नोट ऑफ देम। अगली वीडियो आएगी हम सबके फेवरेट राइटिंग सेक्शन के ऊपर, सो स्टे ट्यून टू दैट। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग रियली वेल, एंड एज यू प्रिपेयर आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।